फैंस के साथ। और मौका भी है क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है। तो एक मैसेज आपको पहले ही देना चाहूँगा रिपब्लिक डे पर कि हम लोग जब रिपब्लिक डे आता है तभी हमें शायद झंडे की याद आती है, तिरंगे की याद आती है। और जैसे ही रिपब्लिक डे ख़त्म होता है उस तिरंगे की वैल्यू शायद हम भूल जाते हैं। जगह जगह पर हमें हमारा तिरंगा झंडा गिरा हुआ नज़र आता है। तो इस बार इस रिपब्लिक डे पर अगर आपको कहीं भी आपका तिरंगा दिखा गिरा हुआ नज़र आए, उसे उठाओ, साफ़ करो, अपने दिल से लगा के रखो। सिर्फ कहने से वैल्यू नहीं होती झंडे की, उसकी वैल्यू एक्चुअली आपको दिखानी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कोई भी आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई करता है तो उसे भी समझाओ, बताओ। शुरुआत करते हैं आपके सवालों से। कुछ एक सवाल हैं जो मैंने पहले ही नोट करके रखे हैं, तो जिनके जवाब मैं दूंगा, और बाकी कुछ सवाल आगे आगे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे आपके सवाल लेते रहूँगा और कोशिश करूँगा ऑनेस्ट जवाब दूँ आपको, क्योंकि ये कोई शो नहीं है जिसमें मैं आपको हंसी वाले जवाब दूँ। ये शो है, ये चैट है मेरे और आपके बीच। तो देखते हैं कि जिन्होंने सवाल भेजे जो मैंने पिक किए। हर्ष हर्ष का एक सवाल है, डू शेयर योर व्यूज ऑन द लेटेस्ट ब्लंडर मेड बाय योर फेवरेट अंपायर कुमार धर्मसेना इन सेकंड ओडीआई ऑन प्लंकेट। Harsh, he made a lot of blunder, but that was one of his blunder. But he's also a human being. He can make mistakes. So when I was doing commentary, I can make fun out of him. But end of the day, I'm a good friend of Dharam Sena, and umpiring is tough job, and anybody can make mistake. We've seen a lot of Indian umpires, who made mistakes, but umpiring is very tough job. So hopefully in coming years or in coming matches, Kumar Dharam Sena or DRS, Dharam Sena review system will improve his umpiring and will make less mistakes. So forgive him. Next question was Now Fee. So imagine the name Now Fee. Thrashing, which bowler do you miss the most? Hope it's not Shoaib Akhtar. I think it was spinners, because I don't feel that spinner is a bowler. He comes and just gives you a lot of ball to hit for 4 and 6s, because I never respect spinners. I was only scared about Muralidharan, but I found out some ways to hit him through covers or maybe point reason, and after that he scared of me also. And when I scored my 293 or 280 in a day, that time I hit a lot of boundaries against Muralidharan. So I think spinners I love to hit: Saqlain Mushtaq, Shane Warne, Muralidharan, Daniel Vettori. These are the bowlers whom I love to hit more 4s and 6s. Sharwan, what was the feeling when you started international school? That time feeling was great. बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स थी, क्योंकि मेरे फादर का सपना था कि मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए ऐसा जहाँ पर बच्चा रहे भी, पढ़ाई भी करे और स्पोर्ट्स भी खेले। तो शायद उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है खोलने की। So I opened this Sehwag International School, and I was top of the world that time when I opened it, because my father's dream was complete, and I was very happy and little nervous also. But luckily my Sehwag International School is doing really well in last couple of years. There are a lot of sportsmen, there are a lot of kids who are doing great things in Sehwag International School. So almost 21 kids played national or state level for Haryana in different sports. One Gaurav played under 19 state for Haryana and scored 100 in first inning. So I was lucky that some of kids are doing really well for Sehwag International School. So next question is Shantanu. Pandya call as Kung Fu Pandya. What makes you so creative? When I do commentary, I love to use their name and surname. If I can give them a different name, or if I can make fun out of their name or surname, or maybe their achievement. So if I can do that, maybe people want to listen something different in Hindi commentary rather than just typical do commentary और ये गेंद कैच लगा और बाउंड्री लाइन पर 4 रन. सो उनको कुछ और देने के लिए या कुछ और हंसाने के लिए शायद ये अच्छी बात है कि आप खिलाड़ी के नाम या उसके सरनेम के साथ या उसकी कुछ अचीवमेंट के साथ ऐसी बातें करो, लोगों को पसंद आए. जिस प्रकार मैंने युवराज सिंह को कहा कि सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, उनका डेब्यू तब हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे. तो ऐसी चीज़ें बोलने से मेरे फैंस जो हैं या जो मैच देखते हैं, सुनते हैं मेरी कमेंट्री, उनको थोड़ा आनंद आता है. और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कुछ बोलते हैं और दूसरों को आनंद दे पाते हैं. शायद मैं लकी हूँ.
विद्यानंद, देखिए आनंद की बात की, यहाँ सवाल भी विद्यानंद का है. व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट रिजर्वेशंस इन क्रिकेट टू फॉर दलित्स एंड आदिवासीज एक्स्ट्रा? नो, वी सीन देयर आर लॉट ऑफ players who comes from small town, or who comes from lower middle class, or who comes from different background, and they are playing, so there is no reservation. If you are good enough, you can play. Doesn't matter you are, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप जो भी हो, अगर आप अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हो, अच्छी क्रिकेट खेलते हो, तो आपको टीम में जगह मिलती है, आप खेल सकते हो. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग खुद क्यों ना हो, या इरफान पठान और यूसुफ पठान रहे हों, या MS धोनी रहे हों, जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं और टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने अपनी लाइफ में. तो आप सबके लिए भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं. बैकग्राउंड मायने नहीं रखती खेल में, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हो, चाहे वो आदिवासी हो. बट ये कहना कि उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए, मैं नहीं समझता. स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता ऐसा. स्पोर्ट्स में आगे वही जाता है जो अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी होता है. दुर्गेश, वाई मनीष पांडे नॉट गॉट द चांस? भाई मैं कमेंट्री बॉक्स में बैठा हूँ, मैं टीम इंडिया का स्पोर्ट्स स्टाफ नहीं हूँ. सो व्हाई ही डिडंट गेट चांस? आई थिंक बेटर प्लेयर्स आर प्लेइंग. केदार जाधव इज़ बेटर बिकॉज ही स्कोर 100, एंड मे बी MS Dhoni is the best finisher or best metal order. Yuvraj Singh is the best, who played really well. Then Kohli at number 3. So it's difficult. Maybe he should wait a little bit for his chance. When he get his chance, he has to prove himself. So last series against New Zealand, I think he didn't perform well. So that's why maybe he didn't get chance in this. नम्रता, आपके स्कूल के अब तक अचीवमेंट्स क्या हैं? मेरे स्कूल के अचीवमेंट्स हैं, काफ़ी अवार्ड्स मेरे स्कूल को मिल चुके हैं. कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंग्लैंड, इन हरियाणा, नॉट इन इंग्लैंड, इन हरियाणा. और नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल इन हरियाणा, ये भी अवार्ड मिल चुका है. 20-22 बच्चे हरियाणा स्टेट के लिए या नेशनल्स खेल चुके हैं, स्कूल नेशनल्स मेरे स्कूल से. एजुकेशन में हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं. तो इस साल पहला बैच निकलेगा 12th का. तो होप कि एजुकेशन में भी मतलब मेरे बच्चे नाम कमाए, अच्छा रिजल्ट लेके आए 12th का इस बार. मैं सिर्फ स्कूल खोल कर उन्हें फैसिलिटीज़ दे सकता हूँ. मेरे स्कूल का भविष्य मेरे स्कूल के बच्चों के हाथों में है, मेरे हाथ में नहीं है. तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे भी ये सुन रहे होंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट्स लाएंगे मेरे स्कूल के लिए, अच्छा नाम कमाएंगे अपने खेलों में. एक और सवाल है जीतू का, आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एडमिशन्स के लिए क्या करना हो? मेरे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. एजुकेशंस की फैसिलिटीज़ तो हैं ही हैं, प्लस साथ में स्पोर्ट्स की बहुत हैं. क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, लॉन्ग टेनिस के 3 कोर्ट हैं, बैडमिंटन इंडोर है, बास्केटबॉल इंडोर है, स्क्वाश है, टेबल टेनिस है, पूल है. और सारी कोशिश करता हूँ मैं कि और ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दूँ. कोशिश कर रहा हूँ कि एथलेटिक ट्रैक्स लगाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ कि रेसलिंग और बॉक्सिंग की भी फैसिलिटीज़ दूँ. जैसे ही बच्चों का इंटरेस्ट जगता है इनमें, तो उनकी भी फैसिलिटीज़ मैं देना चाहूँगा अपने स्कूल में. क्रिएटिव के लिए हमने एक नई क्लास स्टार्ट की है. एजमेकर एक कंपनी है जिन्होंने क्रिएटिव का कोर्स स्टार्ट किया हमारे स्कूल में. तो वो भी जल्दी उसका भी फ़ायदा मिलेगा बच्चों को. तो काफ़ी सवाल मैंने पहले कुछ रखे थे. इट्स गुड टू एंटरटेन पीपल सर, बट मतलब ये इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं सवाल कि लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है. सौरभ बाला पूछते हैं, वीरू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दादा? Saurav Ganguly is one of the best captain India have ever had, in my view, and he built this team which is now become number 1 in ODI and number 1 in Test matches, and they are in number 4 or 5 in ODI. So hopefully they will win a lot of ODI and become number 1. I think Saurav Ganguly is the man since he took over CAB, Cricket Association of Bengal. He did a lot of things for youngsters. He did a lot of improve a lot of facilities in Eden Gardens. Now he gave a name to like Saurav Ganguly stand, Dalmia stand, Pankaj Roy stand. That what he did. And one more thing I will tell you that he hired Muthaiya Muralidharan and VVS Lakshman for under 16, for under 19. So they can learn, and Mr. Lakshman and Mr. Muralidharan can coach these 16 and 19, and because of that Bengal won the under 19 championship, I think, thanks to Saurav Ganguly only. So I think in my view he is the best captain and best administrator. आपको लगता है
धोनी 2019 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? आस्था का ये सवाल है। आस्था मुझे लगता है कि 2019 ही नहीं, शायद उसके बाद भी धोनी खेल पाएंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही कैप्टनसी की, टीम संभालने की। अब वो एज अ प्लेयर खेलेंगे और एज अ प्लेयर वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और जिस प्रकार कटक में उन्होंने दिखाया कि उनमें दम खम तो है और वो लंबे स्कोर बना सकते हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद वो 2019 का वर्ल्ड कप ही नहीं, उसके बाद भी खेलते हुए नजर आएंगे। थैंक यू, आप इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। मेरे फेवरेट कॉमेडियन कौन से हैं और कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है? शिवम। शिवम मेरा फेवरेट कॉमेडियन एक गंजे हैं जिनका नाम है विक्रम साठे। तो वो क्रिकेटर्स की मिमिक्री बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो मेरे फेवरेट कॉमेडियन वो हैं। और हमारी टीम में मेरे टाइम में कौन होते थे जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था? हरभजन सिंह, मैं, आशीष नेहरा, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, इनके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छे हैं। हमें बड़ा मज़ा आता था इनकी कंपनी में रहकर। शरवण नानी, व्हाट वाज द फील? नहीं, ये सवाल तो मैं ले चुका हूँ आप लोगों को। डिड यू एवर स्लेज एनी वन, प्लीज़ टेल मी दोज इंसिडेंट्स। चिराला, चिराला का सवाल है कि मैंने किसी को स्लेज किया। मैंने अपने पहले ही मैच में, वनडे इंटरनेशनल मैच था मेरा, पहला मैच था, उसमें मैंने स्लेज किया पाकिस्तान के प्लेयरों को, क्योंकि जब मैं बैटिंग करने आया पहली बार तो मुझे शाहिद अफरीदी, शकील मुश्ताक और इन लोगों ने इतना स्लेज किया, इतनी गालियाँ दी कि जब वो बैटिंग करने आया तो मैंने भी बराबर की उनको गालियाँ दी। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। बाकी कुछ इंसिडेंट मुझे याद भी नहीं है कि क्या हुए क्या नहीं। बट पाकिस्तान का पहला मैच मेरा, उसमें मैंने स्लेजिंग खाई भी है, स्लेजिंग की भी है। तो बड़ा मुश्किल होता है संभालना जब कोई स्लेज करे, लेकिन जब आप स्लेज करते हो तो बड़ा आसान होता है, आप स्लेज कर सकते हो किसी को भी। मेरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.siaj.in पर, या इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9711188700। आपको स्कूल में आना पड़ता है, आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो आपको टेस्ट देना पड़ता है, छोटी क्लास में जाते हो तो आपका टेस्ट भी आसान होता है, छोटा होता है। या फिर आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हो जिसके बेस पर आपको एडमिशन मिल सकती है। तो टेस्ट कंपलसरी है, वरना आप वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं SISJ.in पर, या नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9711188700। सोनिया जी पूछ रही हैं कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मेरे स्कूल के प्लान्स ये हैं कि मेरा स्कूल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हो, वन ऑफ द नंबर वन स्कूल हो, बोर्डिंग स्कूल में उसका भी नाम आए, या नंबर वन नंबर टू बने, ये मेरी उम्मीद है। मेरे यहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पास आउट हों जो अपना कैरियर बना सकें, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो। मेरे खुद के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरी कुछ अकेडमीज़ है, मेरा स्कूल है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि बस इन्हीं तीन में अपने आप को बिज़ी रखूँ फ्यूचर में। इन्हीं के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जितना अपना टाइम डिवोट कर सकता हूँ उतना करूँ। अपना अकेडमी में बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, जहाँ पर मैं उनको अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। जो मेरे को क्रिकेट का आइडिया है तो मैं थोड़ा उनके साथ शेयर कर सकूँ, कैसे रन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि मैं टेक्निक के बारे में इतना नहीं बता सकता जितना मैं ये उनको बता सकता हूँ कि मैं कैसे रन बनाता था या कैसे रन बना सकता हूँ। बेस्ट क्रिकेट मेमोरी, मेरी बेस्ट क्रिकेट मेमोरी तो मैं कहूँगा कि धर्मेंद्र का ये सवाल है कि मेरी बेस्ट क्रिकेट मेमोरी क्या कौन सी है। मेरी बेस्ट क्रिकेट मेमोरी है जब मैं पहली बार भारत के लिए टेस्ट मैच खेला और उस पहले मैच में मैंने 100 बनाया। वो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। हाँ, हालांकि लोग कहते हैं कि ट्रिपल सेंचुरी होगी शायद जो आपने पहली बनाई, या जो दूसरी जो हाई स्कोर है 319 वो, लेकिन मेरी बेस्ट मेमोरी क्रिकेट की वही है कि मैंने अपने पहले टेस्ट मैच में 100 बनाया। वो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता। Never forget that moment because everybody was expecting that I will not good enough to play test cricket, and when I got chance so I have to prove everybody wrong, so that's why. वो रिवर्स स्विंग को बंद करने के लिए छक्का वाला किस्सा बताओ ना सर। निशांत ने पूछा है कि जो एक शेनुआ ने अपनी बुक में लिखा था कि रिवर्स स्विंग हो रही थी और मेरे पार्टनर जो काउंटी खेल रहे थे उस समय मेरे साथ, उन्होंने
कहा कि बहुत रिवर्स स्विंग हो रही है तो कैसे उसको हैंडल करूँ, बजाय मैं उनको कोचिंग देता है, समझाता है ऐसे करो वैसे करो, इससे बेटर मैंने एक दूसरा आइडिया लगाया, क्योंकि हमारे ग्राउंड के पास में ही फॉरेस्ट था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, तो मुश्किल होता वहाँ से बॉल ढूंढ कर लाना। तो मैंने उन्हें कहा कि आप स्पिन गेंदबाज से मुझे स्ट्राइक देना, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर उस फॉरेस्ट में मारूँ या जंगल में मारूँ, ताकि बॉल उन्हें मिले ना और चेंज हो जाए। जब चेंज हो जाएगी तो 1-2 घंटे के लिए हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि उस समय रिवर्स नहीं होगी, फिर रिवर्स कराने के लिए उतना टाइम लगता है। तो यही वो कहानी थी शायद जो आप सब लोग सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट कोशिश की जितने मैं पिक कर सकता था उतने पिक करूं। लेकिन अब शायद समय आ गया है मेरा जाने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जाने से पहले मैंने आपको 26 जनवरी रिपब्लिक डे की मैं ज़रूर शुभकामनाएं दूं। उम्मीद करता हूं कि आपका गणतंत्र दिवस बड़े अच्छे तरीके से मनेगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी होगी। मैं टीवी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी का भाषण ज़रूर सुनूंगा, देखूंगा परेड, और उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन कोशिश करें हम अपने तिरंगे की रिस्पेक्ट करें, कहीं भी तिरंगे को नहीं गिराएंगे, छोड़ेंगे, अपने पास रखेंगे। और जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.siij.in पर, या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9711188700, 9711188700। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे इतने सवाल पूछे, इंटरेस्टिंग सवाल। कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी वापस आऊँ फेसबुक लाइव करने के लिए आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।